Hello everyone, kindly let me know if I'm clearly audible. चलिए जी, ऑडिबल है, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बात की थी, जो दोनों ही क्या हैं, सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिससे हमने मियोसिस को समझने की थी, और कल हमने बात की थी कि आज वो वीडियो कंप्लीटली प्ले करूंगा मैं, ताकि आप लोग उसको वन गो में आसानी से देख सकें। ठीक है जी। एक बार उस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे का जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा वाइंड अप। कल से मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पीरियोडिक क्लास। ये है जी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको वन गो में देख लीजिएगा। ठीक है जी। और बाद में अगर किसी को दिक्कत महसूस हो तो वीडियो दोबारा प्ले करके इसको देख पाएंगे आप बिना किसी के लिए जी स्टार्ट करें। Parents, or why some siblings look. Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase I concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase I, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase I, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase I, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis I ends with telophase I, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the 2 daughter cells are separated by a cleavage furrow.
Since the final product of meiosis I is 2 haploid cells, meiosis II begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase II, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase II, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase II. During anaphase II, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase II, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the 2 daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase I, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase I, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings. Have you ever... So ये थी जी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो। एक बीच में बच्चे का क्वेश्चन आया था लीलाधर जी का कि हैप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड होता है हाफ नंबर ऑफ क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कंप्लीट नंबर होते हैं उसमें डिप्लॉइड होता है। इसमें पेयर होता है, पेयर का मतलब 2 मतलब डिप्लॉइड, और सिंगल क्रोमोसोम है अगर 23 में से एक क्रोमोसोम आए हैं पेयर में से, दैट इज नॉन एज हैप्लॉइड। इसके बाद आया है रिदम गर्ग का मियोसिस में डीएनए की कॉपी एक बार ही बनती है। हाँ जी, एक बार ही बनती है। एलेक्स कहते हैं होमोलोगस, गस की स्पेलिंग गैस है, होमोलोगैस पेयर बता दो। भाई जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर होमोलोगस, जो अलग होते हैं वो हेट्रो। दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, उसके बारे में हमें देखते। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspect of reproduction, example physical, emotional, social and behavior। हर तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है भाई, हर तरीके से हर एस्पेक्ट में आप वेल बीइंग हैं। किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। आप मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से, आप इमोशनली, आप सोशली, आप अपने बिहेवियर से अगर फिट हैं रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्शन, देन योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज गुड। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को STDs बोला जाता है। पेपर में ये कंप्लीट नाम ना देके वो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है, STDs के बारे में लिखिए, तो इसको वो फोन वाला STD मत कर देना, ठीक है। Many diseases can be sexually transmitted such as sexually transmitted diseases जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। कहता है कि बहुत सारी डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे बैक्टीरियल और वायरल। आपको ये 4 नाम ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं, बोर्ड एग्जाम में 2-2 नाम पूछे हुए हैं कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है गोनोरिया और सिफिलिस, जबकि वायरस से फैलने वाली हैं वर्ड्स एंड HIV एड्स। ये अलग अलग नहीं हैं,
HIV इज अ वायरस विच कॉजेज एड्स, तो आपको बैक्टीरियल में नाम याद रखना है गोनोरिया का और सिफिलिस का, जबकि वायरस से फैलने वाली बीमारी में आप वर्ड्स और एड्स का नाम याद रखेंगे। यूज ऑफ कॉन्डम प्रिवेंट्स दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, तो आप फिजिकल बैरियर के तौर पे यूज कर सकते हैं डिवाइसेस का, ताकि आप लोग क्या कर सकें, ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन वो तरीका है जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है, कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ओवा की फर्टिलाइजेशन ना होने देंगे। अगर ओवम मीन्स एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। उसको रोकने के कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं। एक है फिजिकल बैरियर, कि भाई प्रिवेंट कर दो एग और स्पर्म का मिलना, किसी भी तरीके से उनको मिलने मत दो। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अलग अलग डिवाइसेस हैं जो मेल और फीमेल जाते हैं। दूसरा होता है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड मतलब दवाइयों से, जैसे ओरल पिल्स होगी, पिल्स होती हैं। दीज चेंजेस हार्मोनल बैलेंस, ये हार्मोनल बैलेंस को क्या करते हैं, चेंज कर देती हैं, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसके साथ गड़बड़ कर देते हैं, जिससे कि जो एग है वो रिलीज ही नहीं होता। मे हैव साइड इफेक्ट्स, भाई जो केमिकल मेथड है उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, केमिकल हैं, दवाइयाँ हैं और केमिकल सब्सटेंसेस से बने, तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, तो प्रॉपर्टी है, लूप है, ये प्लेस की जाती है यूट्रस के अंदर, ताकि क्या हो सके, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके, एग और स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाता इस कॉपर्टी और लूप की सहायता से। अगला है सर्जिकल मेथड, ये मेथड बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर। मेल हैं उनके अंदर जो वास डेफरेंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो ट्रांसफर ना हो, और वो आपका प्रोसेस, वो सर्जरी जिसके थ्रू मेल के अंदर इस चीज़ को ब्लॉक किया जाता है, वो है वेसिकोटॉमी। नाम याद रखना है, नाम इम्पोर्टेंट है जी ये। फीमेल्स के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि एग का ट्रांसफर ना हो, और इसको बोलते हैं ट्यूबिकोटॉमी। ये दो आपके क्या हैं जी, ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशन का नाम जो कहते हैं कि कौन सा ऑपरेशन है, तो ये मेल्स के अंदर वेसिकोटॉमी और फीमेल्स के अंदर ट्यूबिकोटॉमी, जिनके थ्रू ट्रांसफर ऑफ एग और स्पर्म को रोक दिया जाता है। एक टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। इससे क्या होता है भाई, कई बार क्या होता है, जो वुमन है उसकी जो ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब है, वो ब्लॉक हो जाती है, तो नेचुरली भी वो एग नहीं आ पाता फेलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं, वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर। इसीलिए IVF एक टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे भी इन विट्रो आ जाए इसका मतलब उसको स्पेशल कंडीशन में लैब के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। IVF इज एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेथड, किसी में इनफर्टिलिटी है उस मेथड को ट्रीट किया, उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के मेथड को IVF कहा जाता है। इस केस में जो एग है वो फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म के साथ आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी से स्पर्म ले लेते हैं, मेल बॉडी, सॉरी, फीमेल बॉडी से एग ले लिया जाता है, मेल बॉडी से स्पर्म ले लेते हैं, फिर इनका टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, फ्यूजन करवाया जाता है, और अगर वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाता है ज़ाइगोट एम्ब्रियो, तो वापस उसको प्लेस कर दिया जाता है किसके अंदर, मदर के यूट्रस के अंदर, जहाँ पर वो फिर नॉर्मल बेबी ग्रो करते हैं। ओवम इज रिमूव्ड फ्रॉम द फीमेल बॉडी, जो ओवम है उसको फीमेल बॉडी से रिमूव किया जाता है, एंड इज अलाउड टू फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन इन विट्रो कंडीशंस। तो ये कुछ हैं जो भाई फिजिकल मेथड्स हैं या बैरियर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो फीमेल फिटिसाइड, ये क्या होता है भाई, जो बच्चे को पेट में ही, जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको पेट में मारना, फीमेल फिटिसाइड कहलाता है आपका। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम्ब, माँ के गर्भ में ही लड़की जो है उसको मार देना फीमेल फिटिसाइड कहलाता है। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी, एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी, बैलेंस्ड सेक्स रेशियो होना ज़रूरी है, 1000 बॉयज़ के ऊपर 1000 गर्ल्स होनी ज़रूरी है। That can be achieved by educating people to avoid malpractices like female feticide and prenatal sex determination। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह पे या कई जगहों के ऊपर ये लिखा मिलेगा, प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन इज नॉट डन हेयर, इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है जी, मतलब जन्म से पहले बच्चे का ये नहीं बताएंगे कि वो फीमेल या मेल। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, गंदी प्रैक्टिस है भाई। तो हेल्दी सोसाइटी बनाए रखने के लिए जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए, जो नेचर में आना चाहता है वो अपने आप आएगा, इसके लिए इंसान को उसमें उलटफेर नहीं करनी।
प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ इलीगल ऑफेंस, लीगल कहाँ से आ गया भाई, इन आवर कंट्री so as to maintain a balanced sex ratio। इलीगल है जी, ऑफेंस है, लीगल ऑफेंस मान सकते हो, ऑफेंस है बिल्कुल कानूनी, लीगल ऑफेंस सही है भाई, स्टेटमेंट तो यहाँ पे लीगल कानूनी तौर पे क्या है जी, बिल्कुल ही अ, गलत है, ये ऑफेंस है, एक अपराध है जिसकी वजह से हमारे जो सेक्स का रेशियो है वो डिसबैलेंस रहता है। सबसे पुअर जो सेक्स रेशियो था फिलहाल तक के टाइम में वो किसका था भाई, हरियाणा का था, इंडिया के। ठीक है जी, अब काफ़ी सुधार हुआ है इसके अंदर, हम 900 समथिंग पे पहुंच गए हैं, आउट ऑफ 1000 बॉय, पर 1000 बॉय पे 900 समथिंग गर्ल्स पे हम लोग पहुंच। अर्लियर इट वाज 800 समथिंग। हरियाणा सबसे पिछड़ा हुआ था, अब हरियाणा काफ़ी उसको कर। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ आया तो वीडियो को कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कल से स्टार्ट करेंगे जी उसको सेम टाइम पे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।